Resources have already explained things which are found in our surroundings. Surrounding in the sense the things which are available in our environment. Clear? And the things which helps to satisfy our needs. That is to be defined as a resource. Clear? Everything which are found in our surroundings or that is available in our environments which completes our needs or requirements or to satisfy our needs, it is to be defined or called resource. Clear? Understood? Can you imagine the surroundings? Fan, table, chair, board, everything is there. Laptop, and all these things is to be termed as a resource. Why? Because they help to satisfy our needs. Simple? क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और हमारे आसपास अवेलेबल है, तो उसको क्या कहेंगे? रिसोर्स. ठीक? The factors which influence the utilization of resources. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो संसाधनों को यूटिलाइज करने के लिए पूरी तरह से प्रभावित करते हैं? The factors which influence the utilization or the uses of resources. These are following. Clear? These are following. How? For example, the human beings have ability to utilize resources, to convert the resources through the uses of technology. Clear? Second, some of the resources like coal, petrol, gold, silvers, these resources have economical value. Clear? They are important because they have an economic value. And culturally acceptable, culturally in the sense that which has been found in our surrounding that is related to our cultural or diversities or all or any other factors. So basically, the utilization of resources has been influenced by the three essential factors. One is technology, second one is economic value or economical, and the third one is cultural diversity. Clear? See, the resources of transformation and utility of resources depend on. Apart from these three essential factors, there are several other factors on which the utilization of resources has been dependent. Clear? These are first the nature. Nature in the sense the time or the environments where the resources are available. कि किस तरह के माहौल या किस तरह के सराउंडिंग्स में या एनवायरनमेंट में वो संसाधन उपलब्ध है. ठीक. दूसरा, अवेलेबल टेक्नोलॉजी. हमारे पास किस तरह की तकनीक है जिसका हम यूटिलाइजेशन करके उसको और ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं. क्लियर? थर्ड, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट. ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो रिसोर्सेज को बहुत बेहतर तरीके से लोगों के लिए यूटिलाइज करवा सकती है. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. इंडिया में लद्दाख रीजन में यूरेनियम पाया जाता है. ठीक. इंडिया के लद्दाख रीजन में यूरेनियम पाया जाता है. यूरेनियम एक सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन अभी तक उस यूरेनियम का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक उसके यूटिलाइजेशंस के लिए हमने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है. यानी हमारे पास तकनीक नहीं है और इस तकनीक की कमी की वजह से हम उस रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते. समझ में आई मेरी बात? ठीक. उसी तरह साउथ अफ्रीका में पानी के बहुत सारे संसाधन हैं. साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जहां पे पानी के बहुत से संसाधन हैं, लेकिन वहां भी तकनीक की कमी की वजह से, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, the resources has not been utilized. So it is important to utilize resources with the help of technology. Clear? Human beings interacted with nature. हम मनुष्य प्रकृति से जुड़े हुए हैं. किससे जुड़े हुए हैं? नेचर से जुड़े हुए. प्रकृति से इंटरेक्टेड है, जुड़े हैं. थ्रू और किस प्रकृति से तो जुड़े ही हैं और थ्रू जुड़े हैं टेक्नोलॉजी
एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं जो कई ऐसे संसाधन हैं जिनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो ऐसे संसाधनों को टेक्नोलॉजी के थ्रू वो विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। और ये सारे संसाधन किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Resources are not having simple meaning but are a function of human activities. सिंपल सा मतलब ये है कि संसाधन केवल एक शब्द नहीं है, एक अर्थ नहीं है, ये मनुष्य की द्वारा की गई गतिविधियों का एक परिणाम है। ठीक, सबको पता है कि यहाँ अर्थ क्रस्ट में बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो क्या उन मिनरल्स को डायरेक्टली हम यूज करते हैं? नहीं ना, रिफाइनरीज करते हैं ना। जो हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग से निकलता है जो कोल, वो पहले तो ओर फॉर्म में होता है, उसको फिर प्यूरिफाई करते हैं, तब न जाके हम उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली हमने यूटिलाइज कर दिया रिसोर्स को, ऐसा तो है नहीं। फिर in this regard, human is to be considered one of as also an important component of our environment. ऐसे जैसे हमने कहा कि हमारी प्रकृति या हमारा जो माहौल है, जो सराउंडिंग्स है, जो जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो उन चीजों का ह्यूमन बीइंग भी एक हिस्सा है। और जितने भी संसाधन इस धरती पे उपलब्ध हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? ह्यूमन रिसोर्स। कौन है? ह्यूमन रिसोर्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हैज एबिलिटी, स्किल, नॉलेज एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज इन अ बेटर वे। This is to be known or called classification of resources. This is to be known or called classification of resources. There are various four criteria which has been utilized to classify resources into various categories. The most important criteria on the basis of which we classify resources are: first, on the basis of origin. Origin का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पे। On the basis of origin, we have two categories of resources. One is biotic, second one is abiotic. Biotic simply indicates living things. What does mean by biotic? Simply mean living things. For example, biotics, the resources which have a life, like plants, like animals, like human beings. इनमें क्या है? जीवन है। तो ये भी तो रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, ह्यूमन बीइंग्स भी है। ठीक, फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब स्पीसीज ऑफ प्लांट, प्रजातियां। फना है, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, फिशेस है, मछलियां हैं, लाइव स्टॉक है, हमारी जीविका है। दूसरा डिफरेंस, बायोटिक रिसोर्सेज has been obtained from the biosphere. किससे बने हैं? Biosphere. ठीक, तीसरा, these biotic resources are the example of biological factors. तीन डिफरेंस में। Next, abiotic simply indicates or mean non-living things, but these abiotic component of the environment are essential or important for the survival of biotic. अब मान लीजिए ये प्लांट्स है, और प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट जिंदा रहेगा? ह्यूमन बीइंग्स को अगर हवा नहीं मिलेगी तो जिंदा रहेगा नहीं। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? These are the non-living, these are related to the non-living things. ठीक, they are component of the, they are also the component of the environment but indicating non-living, like air, water, soil, sunlight, metals, minerals, rocks, and these to be considered as a physical factors. What these are considered? These are considered as a physical factors, and the most important thing related to this is that these are important for the survival of biotic. Clear? Understood? Next criteria.
Next criteria is on the basis of exhaustibility. We have, on the basis of exhaustibility, we have two different resources. One is renewable, second one is non-renewable. Renewable resource simply indicates which can be renewed through any process, जिसको हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो केमिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, किसी भी एक प्रोसेस से हम उस रिसोर्स को रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके स्टॉक लिमिटेड है, जैसे कोल, पेट्रोल और डीजल, एक न एक दिन ये खत्म हो जाएंगे और अभी तक हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि हम इसको दोबारा जनरेट कर लें। ठीक, समझ में आई मेरी बात? उसके बाद नॉन रिन्यूएबल जब यूटिलाइज्ड होते हैं, जब इनका यूज किया जाता है, तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। कहां पे? जैसे आपने देखा होगा कि कोई डीजल की गाड़ी चलती है तो उससे धुआं निकलता है, ठीक, कोयला जलता है तो उससे धुआं निकलता है। लेकिन मुझे ये बताइए, सोलर एनर्जी जब जनरेट होती है तो क्या ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं? नहीं। विंड करता है? नहीं। वाटर करता है? नहीं। फॉरेस्ट करता है? नहीं। वाइल्ड करता है? लाइफ करती है? नहीं। क्योंकि ये सारे जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब मान लीजिए वाटर, वाटर को हमने कहा कि वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, अब वाटर कैसे रिन्यूड होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, यानी वाटर साइकिल से। और वाटर साइकिल क्या है? द कंटीन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अ नेचर by the process of two factors, evaporation and condensation. Clear? Solar energy, as you know, India is a tropical country, and India is a tropical country, and the northern parts receive maximum duration of sunlight. That's why the government has also been installed solar plant in rural area. अब लोगों के घरों की छत पे सोलर पैनल लग रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक, उसके बाद विंड मिल आपने देखा होगा, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, तटवर्ती क्षेत्र हैं, तमिलनाडु का हुआ, गुजरात का हुआ, या जहां पे भी तटवर्ती क्षेत्र है जहां हवाएं बहुत तेज बहती हैं, वहां विंड मिल होती है। और विंड मिल में एक टरबाइन होता है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जब पानी बहता है रनिंग वाटर से। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद फॉरेस्ट को तो आप जानते ही हैं कि फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक, अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो एफॉरेस्टेशन भी करेंगे। अगर मान लीजिए जंगलों को आपने काट दिया तो फिर जंगल के लिए आप नए प्लांट्स लगाना भी शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ, दैट इज ऑल्सो। ठीक, तो दीज टू आर, इसमें क्वेश्चन ये बनता है, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लास 10 का भी क्वेश्चन है और ये अप टू क्लास 8 तक भी पढ़ाया जाता है। क्लास 10 में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और क्लास 8 में इसमें पूछा जाता है क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट क्राइटेरिया, ऑनरशिप के बेस पे। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना अधिकार। ठीक है, ऑनरशिप के बेस का मतलब आता है मालिकाना अधिकार। अब जैसे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए राहुल सर, राहुल सर की कार है, तो राहुल सर जो उस कार के मालिक है कि मैं मालिक हूं? राहुल सर, या हम सभी लोग तो मालिक है नहीं, क्योंकि कार किसकी है? राहुल सर की। तो रिसोर्सेज विच हैज ओन सिंगल पर्सन ओनर, अगर किसी भी संसाधन का एक सिंगल व्यक्ति मालिक होगा तो वो इंडिविजुअल होगा। मान लीजिए आपका अपना घर है, तो आपके घर का मालिक कौन है? आपके पापा है ना, तो वो इंडिविजुअल हुआ। फिर आपके अपने खेत है, प्लॉट्स हैं, दुकान है, ये सारे रिसोर्सेज इंडिविजुअल, यानी एक मालिकाना अधिकार, एक व्यक्ति के नाम। दूसरा कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज वो होते हैं रिसोर्सेज व्हिच हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द होल कम्युनिटी। जैसे मान लीजिए गांव में लोग रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर गांव की
ग्रेजिंग लैंड है तो उसमें उनकी बकरी चरेगी, उनकी बकरी नहीं चरेगी, ऐसा तो नहीं ना है। तो गांव की जो जमीन, चाहे पार्क हो, ग्रेजिंग लैंड हो, जिसपे पूरे गांव के लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, दैट इज टू बी डिफाइंड एज अ कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे गांव का पोखरा, अब पोखरे में सभी लोग जाएंगे नहाने के लिए, नहाने आदमी नहीं जाएगा, अपने जानवर लेके जाएंगे, तो यूटिलाइजेशन तो पूरे गांव के लोग करेंगे ना। छठ पूजा करेंगे, नदी नहीं है तो पोखरे में जाएंगे, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लोग कहेंगे कि तुम जाओ यहाँ पूजा नहीं करनी है। ठीक, वो कौन सा रिसोर्स है? कम्युनिटी रिसोर्स। ग्राउंड है, मान लीजिए क्रिकेट मैदान है, अब वो पूरे गांव के बच्चे खेल सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई जाएगा क्या तुम नहीं खेलोगे। ठीक, फिर आता है नेशनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट। नेशनल का मतलब है वो सारे रिसोर्सेज जो देश से रिलेटेड, द रिसोर्सेज व्हिच आर रिलेटेड टू आवर कंट्री, व्हिच आर रिलेटेड टू आवर नेशन, जो हमारे राष्ट्र, जो हमारे कंट्री से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए सरकार का काम क्या होता है? सड़क बनवाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनल्स, नहर खुदवाना, रेलवेज सरकार के अधीन है, अर्बन डेवलपमेंट, बिजली का तार लगवाना, किसका काम है? गवर्नमेंट का। तो ये रिसोर्सेज किसके हैं? सरकार के। तो कौन से रिसोर्सेज की कैटेगरी? नेशनल। फिर आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब जितने भी समुद्र में पाए जाने वाले संसाधन, ओशियन पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं, उस पे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होगा। ठीक, अब इसको हम करते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स लिख दिए बोर्ड पे, ठीक, इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल्स लिख दिए बोर्ड पे, ठीक, और मैंने आपसे क्वेश्चन नीचे लिख दिया, पिक आउट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। अब मैंने चार ऑप्शन डाले, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। अब आपको जो जैसा रिसोर्स होगा उसका नाम लिखना होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हाउस है तो आप लिखेंगे इंडिविजुअल, ग्रेजिंग लैंड है तो आप लिखेंगे कम्युनिटी, रोड है नेशनल, ओशियन है इंटरनेशनल। हाँ, जितने भी समुद्र से रिलेटेड संसाधन हैं उस पे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिपत्य, अधिकार होगा। मान के चलिए